lecture we will study about changes of state and the kinetic particle theory. How different state of matter changes and the kinetic particle theory. The physical state of substance depend on the temperature and pressure of the surrounding. So physical states which we studied earlier, solid, liquid and gas. These state of matter depend on temperature and pressure of the surrounding. For example, ice changes to water when it is heated. Ice changes into water when it is heated. Upon heating, it changes into water. However, reverse occur. Water on cooling changes into ice. As you know, when we keep water in freezer, then the water changes into ice. But when water or ice is at room temperature, it melts into water. So it's a simple change. Water changes to water vapor when it is heated to its boiling point. You know, when you keep water on stove, then the water changes into steam. Okay. Melting and boiling are examples of changes of state. Other examples of changes of state are freezing and condensation. Changes of state are reversible. You must know that changes of state are reversible. Reversible mean that when you freeze water, it changes into ice, but ice changes into water on heating. So it's a reversible process, means water can be changed into ice and ice can be changed into water. So it's a reversible process. Here we have a changes. Here you can see that this is shown an show ice, and ice on melting changes into water. Water is a liquid, and liquid on evaporation or boiling, when you do boiling, then it changes into gas. Okay, one more process. Solid can be changes into gas if it gets sufficient energy. For example, when you put ice on stove and they provide sufficient energy, then the ice directly changes into, on getting sufficient energy, it directly changes into gas. There is another process, condensation. You will study about lot in condensation. It is also shown here, but let's do it deeply. Condensation is a change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase. Means gas to liquid, and it is the reverse of vaporization. Okay, for example, if you have boiling water and you cover it, as shown here, that boiling water is covered with a lid, or is covered with a lid, then the vapors, you are providing heat. These water vapors, when reach to this lid, the temperature goes down, means that the energy it gains, it loses that energy, and the gas changes into liquid and it condenses. You can see that gas changes into liquid or water. You know this example, if you put utensil on stove and on heating, you often see that जैसे भाप चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में. वो जो आपका ऊपर लिड रखी हुई होती है या ढक्कन रखा हुआ होता है, उसके ऊपर जो कतरे लगे हुए होते हैं. प्रोसेस क्या इसमें हो रहा है कि वाटर जो है वो एनर्जी लेता है. अगर आप वाटर को हीट कर रहे हो तो हीट कर रहे हैं हम नीचे से, और वो एनर्जी लेगा, और वो वाटर किस में चेंज हो जाता है. पहले वाटर चेंज हुआ
गैस में, और गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। गैस ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एनर्जी आप ये कह सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। काइनेटिक का मतलब है मूव कर रही है, मूवेबल एनर्जी। ओके, विच प्रोवाइडेड सफिशिएंट एनर्जी सो दैट द पार्टिकल्स कैन मूव, रैंडमली मूव। ओके, गैस को अगर गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ज़ाहिर बात है ये मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करेगी तो जो गैस इसने अचीव की थी, जो इसने एनर्जी अचीव की थी, वो उसको क्या करनी पड़ेगी, लूज़ करने की पड़ेगी। और जैसे ये एनर्जी को लूज़ करेगा तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहले क्या किया है, पानी को हीट किया। ये जो ये ट्रायंगल है, ये जो डेल्टा का साइन है, ये शो करता है हीट को। तो वाटर को हीट किया, वो किस में चेंज हो गई, गैस में। अब ये जो गैस का वाटर में वापस चेंज होना, ये कहलाता है कंडेंसेशन। और वाटर का गैस में चेंज होना, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। ओके, तो गैस किस में चेंज हो रही है, वाटर में। यानी कि गैस जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। इट्स मीन कि कंडेंसेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेल्टिंग? Before melting, I would like to explain what causes a substance to change its state. According to the kinetic particle theory, particles of matter are in constant motion. Every particle of matter, either it is in solid, liquid, or gas. The particle of solid are in motion, but their motion are only localized, means they can only vibrate at their fixed position. As we studied that solids are closely packed, so they cannot move around, only they can vibrate at their fixed position. अपनी ही जगह पे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक हो गया। Thus they have kinetic energy. Gases have the highest energy content. Gases के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है। और गैसेस के बाद किसके पास है, लिक्विड, और उसके ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है। और उसके एंड में किसके पास आ जाता है, सॉलिड्स हैव द लीस्ट एनर्जी कंटेंट अमंग 3 states. Okay, now what about melting? What is melting? The temperature at which a solid becomes a liquid is called melting. You know, we often say that our ice cream is melting, means that solid changes into liquid. Okay, there is a pattern shown here that solid heat energy is absorbed by the particle in solid. heat energy वो absorb करते हैं. The heat energy is converted into kinetic energy. You know, one energy changes into another energy. यानी कि जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट। चूँकि सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी मोशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, फास्टर अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन, एज आई टोल्ड अर्लियर दैट एट देयर फिक्स्ड पोजिशन. Next, and solid changes into liquid. When the temperature is high enough, the vibration of the particle becomes sufficient to overcome the attractive forces between them. इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो दो पार्टिकल एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. The particle begin to break away from their फिक्स पोजीशन. अपनी फिक्स पोजीशन से यहाँ पे देखो ज़रा, ये शो किया हुआ है, यहाँ पे क्लोजली पैक थे, जबकि यहाँ पे क्या हो गए हैं, थोड़ा दूर दूर चले गए हैं. एंड एट द लास्ट द पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर इन देयर फिक्स पोजीशन. यहाँ पे देख सकते हो कि अब वो फिक्स पोजीशन पे नहीं रहे. द पार्टिकल स्लाइड ओवर वन अनदर. अब चूँकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है, हमने पहले भी पढ़ी थी कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं. वेयर आई गिव यू एग्जांपल ऑफ हनी. नेक्स्ट, द सब्सटेंस इज नाउ अ लिक्विड. Here, how does the temperature of a solid changes when it melts? टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि टेम्परेचर कैसे चेंज करता है. here is an example of naphthalene.
Naphthalene. Specifically, we are talking about naphthalene. Naphthalene, what is naphthalene? Naphthalene is a mothballs. वो जो गोल गोल सी वाइट वाइट गोलियाँ रखी हुई होती हैं, अम्मियों ने रखी होती हैं ना, वो वाली वाइट। वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर गिवन है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हीटिंग कर्व है। ये जो हीटिंग कर्व जा रहा है ये, ओके। अगर आप देखो इधर 80 सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन, मतलब जो सॉलिड बॉल है वो उसको किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज होगा। सबसे पहले ये वाला कर्व आ रहा है, ए बी कर्व, ए बी कर्व, हे दे शो ए बी कर्व। ए बी कर्व, द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड नेफ्थलीन इंक्रीजेज। यहाँ देखो ज़रा वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो जाहिर बात है जब ये ग्राफ यूँ जा रहा है, इट्स मीन टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग अंटिल इट रीचेज ए पॉइंट बी पॉइंट पे पहुँच के द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। बी क्या है यहाँ पे बताया हुआ था, बी क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। अब होता क्या है कि ये देखो ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। एट पॉइंट बी सॉलिड नेफ्थलीन बिगिनस टू मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। अब उसका कोई एक दो पार्टिकल क्या है वो किस में जाना शुरू हो गए हैं, लिक्विड स्टेट में, और ये यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। जो चीज़ प्योर होती हैं वो एक कांस्टेंट पॉइंट पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो मेल्ट होती हैं। डन। इसके बाद क्या होगा, जब वो मेल्ट हो जाता है उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। पहले हम ये बी सी को देखते हैं। ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट द temperature of naphthalene does not rise even though heating continuously. Very important point, वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, लेकिन ग्राफ क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, underline this, the temperature remains constant because all the heat energy taken in by the particle is used to overcome the forces of attraction. Very important point, जितनी एनर्जी दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ वो किस काम आ रही थी, उनकी अट्रैक्शन तोड़ने के काम आ रही थी। जो मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे उनको क्या कर रहा था, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जो करीब था उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को, ये जो दो मॉलिक्यूल करीब थे इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, इसको ब्रेक किया जा रहा था। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी, वो हीट एनर्जी प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं, ठीक है। होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर, ये जो दो पार्टिकल्स को इकट्ठा रखे हुए थी, हम बार बार कह रहे हैं सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं मतलब इनके दरमियान में क्या होती हैं, अच्छी खासी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। अब क्या करना है, जब इसको मेल्ट करना है तो हीट प्रोवाइड करेंगे, और वो हीट क्या करेगी, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी। ओके, जब तक ये सारी ब्रेक होती रहेंगी, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, सब के सब ब्रेक हो गई। लास्ट आपके पास कर्व आ जाता है सी डी कर्व। यहाँ पे देखो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया था, लिक्विड हीट्स अप। अब यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर क्या बन गया है, वो लिक्विड, सारे का सारा लिक्विड हो गया। यहाँ से अगेन हम फिर पीछे से शुरू करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर सॉलिड था, सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ है, इट बिगिनस टू मेल्ट, ठीक है। बी के ऊपर वो भी शुरू है, जैसे आपकी आइसक्रीम होती है वो क्या करती है, मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है ना, और आप लिक करना उसे स्टार्ट कर देते हो, सारी तो नहीं ना अभी आपकी मेल्ट हो गई। वही प्रोसेस यहाँ पे है, कुछ उसकी क्या हुए हैं, लिक्विड स्टेट में गए हैं पर सारे नहीं गए, जब तक सारे ना चले जाएं। यहाँ पे सारे, इस पॉइंट पे सारे आप जा चुके हैं, ओके। जब सारे चले गए फिर क्या है, यहाँ पे ये लिक्विड बन चुका है, ऑल द मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक हो गया। एट पॉइंट सी ऑल द सॉलिड नेफ्थलीन हैज़ मेल्टेड एंड द टेम्परेचर लिक्विड नेफ्थलीन राइजेज एज हीटिंग कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये आपकी बुक में से लास्ट, ये पेज भी आपकी बुक में से ही था, ठीक है। और दिस वन इज़ आल्सो फ्रॉम योर बुक, यू हैव टू नोट दिस थिंग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है गैस में, सबसे ज़्यादा। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। उससे कम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब मोशन एंड एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद उससे कम, गैसेस से कम किस में होती हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, सॉलिड्स में।
That's all for today.